Hey guys, welcome and welcome back to my channel. If you guys are stopping here for the first time, hello, this is Daljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to this channel. Please click on that subscribe button down below and also don't forget to click on the bell icon right next to that so that you get notified each and every time I upload a new video. In today's video, I'm going to talk about a young and new brand which is called Chemist at Play और मेरे पास उनके दो products हैं. So first one is this 20% vitamin C serum and the another one is this 10% AHA plus 1% hyaluronic acid serum. So they call their AHA serum as exfoliating face serum and their vitamin C serum is called as brightening face serum. मैं इन्हें nearly एक month से यूज़ कर रही हूँ. मुझे लगता है कि मैंने इनके बारे में एक opinion develop कर लिया है. So I'm going to share my opinion, my view, my experience about these products with you all. Okay, so let's start with that. Before I talk about any of the products, I want to talk a bit about the brand first. So Chemist at Play is comparatively new Indian brand and they have ceramides based skincare. अभी तक उनके I think 4 ही products हैं. I think one is niacinamide serum, one is hyaluronic acid, they have AHA and then another one is vitamin C. I'm not sure but मैं चारों products यहाँ पे mention कर दूँगी just in case if you want to try some ceramides based skincare you can go and try that. Okay, alright, so let's talk about their exfoliating serum first. So it has 10% of AHA और जो AHA इसमें है that is lactic acid. लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है कि लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स साइज में थोड़े से बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड, इसलिए वो स्किन में बहुत ज़्यादा डीप लेयर पे पेनिट्रेट नहीं करते हैं और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करते हैं इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्किन पे जेंटल होते हैं एज कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड. सो इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन या फिर ड्राई स्किन तो आपके लिए लैक्टिक एसिड ज़्यादा अच्छा है. If you have oily skin or if you have been using acids or chemical exfoliation since long तो फिर आप glycolic acid try कर सकते हो. Let's talk about how to use this serum. So what you have to do, wash your face with a very gentle cleanser. Do not use a harsh cleanser, okay? And then pat your skin dry and use 2 or 3 drops of this serum and completely press it and tap it on your skin. Do not rub it on your skin, alright? और 4-5 मिनट में once the product is completely absorbed into your skin उसके बाद आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लो so that अगर केमिकल एक्सफोलिएशन से थोड़ी बहुत ड्राइनेस होनी भी है तो वो मॉइस्चराइजर की वजह से नहीं होगी एंड नेक्स्ट डे यू कैन हैव कम्प्लीटली स्मूथ एंड मॉइस्चराइज स्किन. ऑलराइट, ये तो बात हुई कि इसे यूज़ कैसे करना है, पर यूज़ कितना करना है. आई वुड से दैट इफ़ यू आर न्यू टू केमिकल एक्सफोलिएंट्स, अगर आपने AHA, BHA, टोनर या सिरम कभी भी यूज़ नहीं किया है तो फिर यूज़ इट वंस अ वीक, दैट शुड बी जस्ट फाइन फॉर यू. और अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते आ रहे हैं, अगर आपने मास्क यूज़ किए हैं पहले या सिरम या टोनर यूज़ किया है, इन दैट केस ट्वाइस अ वीक शुड बी फाइन. उससे ज़्यादा यूज़ मत करना क्योंकि इट हैज़ 10% ऑफ lactic acid that can actually harm your skin barrier. Now let me tell you how this specific product has worked for me. So I have been using glycolic acid since 3 or 4 years now, or I have been using that Pixi Glow Tonic that is 5% glycolic acid, and recently I have started using the one by Dr. Sheth's as well. Okay, now because I have been using glycolic acid toners, the 5% glycolic acid toners every alternate day, तो मैंने इसे भी alternate day use करना start किया. I thought that my skin is used to glycolic acid and lactic acid is actually gentle, so it should also work. But क्योंकि मैं alternate day पे use कर रही थी and it has 10% lactic acid in it, my skin actually started behaving very weird. Okay, I was getting tiny bumps and मुझे समझ में आ रहा था कि मेरी स्किन के लिए ये एसिड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. So what I did, I stopped using it every alternate day और मैंने इसका यूज़ करना वीक में 2 बार स्टार्ट किया. And once I started doing that, I saw a huge transformation in my skin. मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर फ्री हो गई थी एंड आई वॉजेंट एबल टू सी मैनी बम्स ऑन माई स्किन. मुझे पिगमेंटेशन भी कम होती दिख रही थी एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू सी माई एक्ने स्कार्स रिड्यूसिंग. हालांकि आई एम ऑल्सो यूजिंग सम अदर प्रोडक्ट्स दैट माइट बी इफेक्टिंग माई एक्ने स्कार्स, बट या दिस वन वॉज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल फॉर मी. आई वॉज एबल टू सी ग्लो नेक्स्ट डे वेन एवर आई वॉज यूजिंग दिस सिरम और मेरा मेकअप भी काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन पे बैठ रहा था. सो आई कैन से दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ वर्कड नाइसली फॉर मी. Saying that, I still like Pixi Glow Tonic more. Maybe because of ease of application, उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा वाटरी है और वो उसकी स्ट्रेंथ इससे हाफ है, दैट इज़ 5% ग्लाइकोलिक एसिड. मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था यूज़ करने में. मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बता देती हूँ. ये वाटरी है बट स्टिल अ बिट थिकर. ओके, इट्स लाइक ऑलमोस्ट वाटरी जेल.
स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्किन पे बैठता नहीं, यू डू नॉट सी एनी लेयर। जैसे आप लगाते हैं 1 या 2 मिनट में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दैट इज़ गुड थिंग अबाउट इट। सो इफ़ यू वांट टू आस्क मी दैट इफ़ यू शुड बी यूजिंग दिस प्रोडक्ट और नॉट, आई वुड से दैट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो फिर ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, देन यू कैन गो विद दिस लैक्टिक एसिड। बट क्योंकि ये 10% है एंड इफ़ यू आर न्यू, तो जैसा मैंने कहा कि आप इसको वीक में 1 बार ही लगाइए, और अगर आप यूज़ करते आ रहे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन तो फिर आप इसको वीक में 2 बार भी लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा मत लगाना, अदरवाइज इफेक्ट्स अच्छे दिखने की बजाय आपकी स्किन का बैरियर जो है वो टूट जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू सी गुड रिजल्ट्स। Okay, let's talk about our second product now, which is this 20% vitamin C serum. It also has 1% of tocopherol, which is nothing but vitamin E. It also has 0.5% of ferulic acid. तो जिस भी विटामिन सी में आपको विटामिन ई और फेरोलिक एसिड एक साथ मिलता है, देयर आर हायर चांसेस दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, और इसमें ये तीनों हैं। एंड इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट पैकेजिंग, क्योंकि विटामिन सी के लिए पैकेजिंग अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो विटामिन सी काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो अगर उसकी पैकेजिंग सही नहीं है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज एंड देन यू पीपल वोंट बी एबल टू यूज़ इट। सो उसके लिए जनरली दे यूज़ टिंटेड ग्लास बॉटल्स या फिर ऐसे ओपेक पैकेजिंग यूज़ होती है। सो केमिस्ट एट प्ले हैज़ यूज्ड दिस ग्लास बॉटल। ये एक्चुअली ग्लास है, प्लास्टिक नहीं है, बट उसके ऊपर कुछ ये रैप सॉर्ट ऑफ है, जिसकी वजह से ये ओपेक दिख रही है। द ओनली प्लास्टिक दैट आई थिंक इज दिस कैप एंड यू नो दिस ड्रॉपर। So yeah, that is really good. The only complaint I have with this packaging is that, not actually complaint but issue है मुझे, कि अगर फिर ये opaque packaging है तो अगर product खत्म होने वाला होगा, you won't be able to know कि कितना बाकी है और कितना नहीं। So what you will have to do is every time you are using the serum, आपको खोल के देखना पड़ेगा कि कितना बचा है। So that's clear. The type of vitamin C that goes in it is ethyl ascorbic acid, जो कि काफ़ी स्टेबल फॉर्म है, तो इतनी जल्दी तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। It also has ceramide, so that's another good point. और the texture of the serum, it's not a clear serum, okay? कैमरा पे शायद थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, बट ये ऑफ वाइट है और थोड़ा सा क्लाउडी है। एंड लेट मी शो यू दी कंसिस्टेंसी, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी और रनी है ये, इफ़ यू कैन सी, और स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है ये। सो दैट इज़ नॉट एन इशू, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाती है इसकी, एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी एविडेंट ग्लो एज वेल। सो दैट्स अनदर गुड पॉइंट। लेट मी टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सीरम एज वेल। मुझे इंग्रेडिएंट्स में तो फ्रेग्रेंस नहीं दिखी है, बट इट हैज़ वेरी सिट्रसी स्मेल। इट्स स्लाइटली कॉपरिश एज वेल। अगर आप कॉपर के बर्तन में कुछ पानी रखते हो तो उससे जैसी स्मेल आती है, कुछ वैसी भी है। नाउ दे ऑल्सो से दैट ये फ्रेग्रेंस जो है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल की वजह से है। नाउ एसेंशियल ऑयल सब लोगों को सूट नहीं करता है, बट अगर आपको सूट करता है तो फिर आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपको एसेंशियल ऑयल से इशू है तो फिर दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू। Yeah, now let's talk about how to use this serum. So the chemist at play says that you can use their vitamin C serum twice a day, but I would advise totally against that, you guys. 20% of vitamin C is actually too much, and using it twice a day can actually irritate your skin. Even if you have been using vitamin C serum for ages, using it twice a day is a big no-no, you guys. It's a big no-no. आप विटामिन सी सीरम रात में भी लगा सकते हैं और दिन में भी लगा सकते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ इट इन द मॉर्निंग, क्योंकि फिर रात को मैं AHAs, PHAs और रेटिनॉल्स लगा सकती हूँ। नाउ आई एम यूजिंग दिस सीरम एवरी मॉर्निंग, और फिर मैं उसके बाद सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। अब क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और इसमें भी विटामिन ई है और मेरी सनस्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर दिन में तो स्किप ही कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस सीरम हैज़ वर्कड फॉर मी। सो टिल डेट आई हैव यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन सी सीरम. Some have worked great for me, some were extraordinary, and some were just okay. So when I say that I know what a good vitamin C serum is, you guys need to trust me, and this one has given me great results. Okay, so जब आप विटामिन सी सीरम यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक ही मंथ में दिखता है कि आपकी स्कार्स जो है ना वो फेड हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, एंड यू नो योर स्किन फील्स हैप्पी। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर सीइंग दैट आपकी स्किन विटामिन सी सीरम यूज़ करने के बाद भी डल फील कर रही है, और यू नो इफ़ यू आर गेटिंग न्यू एक्नेस या फिर बम्प्स, तो फिर वो विटामिन सी सीरम आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। यू नीड टू इधर स्टॉप यूजिंग इट, या फिर आपको दूसरी तरह का कोई विटामिन सी सीरम ट्राई करना है। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस तो इस प्रोडक्ट के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मैं इसे एक मंथ से यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम एबल टू सी ग्लो ऑन माई फेस, और यू नो मेरे एक्ने स्कार्स भी फेड हो रहे हैं। ऑब्वियसली मैं AHA सीरम भी यूज़ कर रही हूँ, तो मे बी दोनों प्रोडक्ट्स मिलके वर्क कर रहे हैं, बट आई एम एबल टू सी द रिजल्ट्स। आई एम नॉट गेटिंग एनी न्यू एक्ने और यू नो बम्स ऑन माई फेस, तो फिर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट?
इसके अलावा माई स्किन ऑलवेज फील्स मॉइस्चराइज्ड। मेरी ऑयली स्किन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेची और ड्राई फील होने लगती है, बट इसको यूज़ करने की वजह से मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रही है। सो बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन आई डू नॉट यूज़ मॉइस्चराइजर विद दिस वन, बट अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आपको फिर मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना पड़ेगा। ओवरऑल आई कैन से कि एक विटामिन सी सीरम से आप जो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो, antioxidants or glow or fading of scars, fading of pigmentation, I was able to see all those with this serum. So मेरे लिए तो this one is 5 out of 5। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि if you are new to the vitamin C game तो फिर आप ये सीरम मत यूज़ कीजिए, then this serum is not at all for you, क्योंकि इसमें 20% of vitamin C है which is very very strong strength of vitamin C serum। आप 5% से ट्राई कीजिए। once your skin is comfortable in 5%, आपको समझ में आ रहा है कि 5% स्ट्रेंथ से आपकी स्किन अच्छा फील कर रही है, then you can go up to 10%, 15% and even 20%, then you can do that। but 20% से ऊपर तो आप फिर भी मत जाइए। I was able to see some serum have 30% and 35% of vitamin C strength। that is too much you guys, that can actually irritate your skin। एक दो दिन के लिए तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगी, बट फिर इंटरनली आपकी स्किन ना वो डैमेज हो रही है, क्योंकि फाइनली ये एसिड ही है और आप एक साथ इतना सारा एसिड डाल दोगे तो just think about your skin। okay, so now the final verdict about these two products। I have thoroughly enjoyed using these products। मैं विटामिन सी सीरम को तो 5 out of 5 दूंगी और इस AHA को मैं दूंगी 4 out of 5, जस्ट बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ 10% थी। अगर ये 5% होता तो मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाती, तो शायद मैं तब इसे 5 out of 5 भी दे देती। विद दैट वी आर डन विद टुडेज वीडियो। अगर आपके AHA या विटामिन सी सीरम को लेके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं तो आप उसको मुझे IG पे DM भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं एंड मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और ये प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। आई डोंट थिंक कि ये प्रोडक्ट नाइका पे अभी अवेलेबल है, इनका इंस्टाग्राम स्टोर है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, वहाँ से आपको बाकी लिंक भी मिल जाएगा और बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।